Good morning, class. So take out your chapter 18. Let us discuss today this. Yesterday we have discussed about articles. Okay. So today what we are discussing, take out your first write today's date, beta. Okay. Now see, today what we will discuss, take out your chapter 18. That's your page number 87. What is the chapter name? Agreement of verb with subject. Okay. So take out nice agreement of verb with subject. Okay. Now what is verb? See. What is verb? You can say all the action words. All the action words or all the doing words. That is the verb. And what is the subject? You can take it as noun. Subject of what we are talking about. है ना? वही होता है ना? So जैसे आपका एक सेंटेंस है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है सेंटेंस. One is subject and one is predicate. Now, what is subject? Subject is the main topic of what we are talking about. Predicate is what we are talking about. So, subject basically it is noun. Okay. Now, there is a relation between noun and the verb. What is the relation? See beta. Action words you can take like play, clap, sleep, eat, whatever you do. That are your action words. Okay. Now see beta, in every sentence there is one subject, one verb, or you can say there is noun and the verb in every sentence. Okay. Now there is a relation between these two. What is the relation? That we will discuss today. Okay. And on that basis we will complete our exercise. Okay. How the sentence is formed, what are the changes in the verb with the noun. Okay. Now see beta. Now all of you know the noun is divided into 2 parts. One is your singular and one is your plural. Like for example, boy. Okay. How to form it in plural? Just simply add as and it will be formed. Okay. Singular to plural just by adding as. As or es. Like for example, box is there. Then es we add and we make it as boxes. What we add? Es. Okay. Now see, what is the relation between these two is so first of all, today what we will discuss the relation between the verb and the noun. Okay, noun and the verb. First, noun is coming, na? Afterwards, verb will come. Okay. Okay, tell me, see. Beta, your noun in pronoun. Okay, suppose I am taking first as pronoun. Okay, your pronoun is divided into 3. What the 3 beta? First person. See. Pronoun is there. It is
is divided into three parts. Okay, it is divided into 3 parts. First is first person, then it is second person, then it is third person. ओके, जो आपका प्रोनाउन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. लाइक जैसे आपके रिलेशंस होते हैं, फर्स्ट कौन होती है आपकी फैमिली, ठीक है, सेकंड हो गए आपके फ्रेंड्स, थर्ड जिन्हें आप जानते हो, है ना, यही है ना, यही होता है ना. फर्स्ट हो गई आपकी, फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होती है आपकी फैमिली, सेकंड हो गई आपकी फ्रेंड्स, थर्ड जिन्हें आप जानते हो. ओके, नाउ फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट दैट मीन्स फर्स्ट किसके बारे में सोचोगे आप, अपने बारे में सोचते हो. सबसे पहले हम किसके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में. तो अपने बारे के फर्स्ट पर्सन कौन से हो गए, आई, वी, और यू कैन से माई, आवर्स. सेकेंड पर्सन, आप किससे बात कर रहे हो, दैट इज द सेकेंड पर्सन. जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं तो वो आ जाएगा यू, योर्स. ओके, थर्ड पर्सन में आएंगे आपके एक्स वाई जेड. ओके, तो थर्ड पर्सन में कौन से आ गए, जैसे आपके ही, शी, इट, दे. क्लियर, ही, शी, इट, दे. अब देखो बेटा, अगर हम बात करें, सपोज अगर आपकी फ्रेंड कर रहे हो कि देखो मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो मेरे पास भी है, मेरे पास भी सब कुछ है ना. तो यही हमें इस टाइप से ही आपको करना है. देखो फर्स्ट पर्सन जो है, ठीक है, उसके साथ वर्ब में कोई चेंज नहीं आता. ठीक है, सपोज करो मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, प्लेस. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, नाउन का बताया था कि वो 2 में है, सिंगुलर और प्लूरल. यानी कि प्लूरल में हम क्या ऐड करते हैं, एस और ईएस. सेम एज दिस आपका वर्ब में आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, वर्ब में क्या है बेटा, 2 पार्ट्स में डिवाइड. जैसे नाउन आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वैसे भी आपका वर्ब में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, उसमें भी यही है, सिंगुलर और एक है प्लूरल. जैसे आपका प्ले है तो वहां पे आप एस ऐड कर दोगे और बन जाएगा प्लेस. तो सिंगुलर में सिर्फ हम एस कुछ भी नहीं ऐड करते, प्लूरल में हम एस या ईएस ऐड करते हैं. ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द वर्ब. अब वर्ब में फर्स्ट पर्सन के साथ में सिर्फ सिंगुलर ही आता है, दैट मीन्स प्ले का प्ले ही रहेगा. ठीक है, कोई चेंज नहीं करते, वर्ब के साथ कुछ भी नहीं करना, एस या ईएस कुछ ऐड नहीं करना. ठीक है, सेकंड पर्सन कहता है जब तुमने कुछ नहीं लिया तो मैं भी कुछ नहीं लेता. ठीक है, तो इसमें भी वर्ब में आपका कोई चेंज नहीं आता, जस्ट प्ले का प्ले ही रहता है. ठीक है, अब आप जिन्हें जानते हो उन्होंने कहा भाई देखो जब मिल रहा है, ठीक है, हमारे पास तो एस नहीं है. ही ने, शी ने और इट ने ये कहा कि हमारे पास तो एस है ही नहीं. ठीक है, तो जो चीज हमारे पास नहीं है वो हमें चाहिए. ठीक है, तो इसीलिए इनके साथ आ जाएगा प्लेस. ठीक है, और दे ने कहा मेरे पास तो ऑलरेडी एस है क्योंकि मैं एक से ज्यादा हूं, तो मेरे पास तो ऑलरेडी है, तो इसको एस नहीं लिया इसने. ठीक है, आया सबको समझ में. तो फर्स्ट पर्सन के साथ में अगर हम प्रोनाउन में लेंगे तो फर्स्ट पर्सन के साथ में वर्ब में कोई चेंज नहीं है. सेकंड पर्सन में एस और ईएस ऐड करना है. थर्ड पर्सन में ही, शी, इट के साथ में आपने ऐड करना है
he that means one boy, she that means one girl. एक या तो आप एक एनिमल के लिए यूज करते हो या वन थिंग के लिए यूज करते हो। तो इनके पास वर्ब आपका आएगा प्लूरल फॉर्म में, दे ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, एक से ज्यादा है तो वो आ जाएगा, उसके साथ वर्ब आ जाएगा सिंगुलर फॉर्म में। ओके, अंडरस्टूड दीज ऑल थिंग्स। नाउ अब एक चीज देखो, फर्स्ट बेटा हम सारे पॉइंट्स लिखते जाते हैं ताकि हमें याद रहेगा, ठीक है, फिर आपको इजी रहेगा। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, प्रोनाउन में जो फर्स्ट पर्सन है उसके अंदर वर्ब में कोई चेंज नहीं आता, एज इट इज रहता है, वर्ब भी आपका सिंगुलर फॉर्म में रहता है। ठीक है, सेकंड पर्सन में भी वर्ब आपका किस फॉर्म में रहता है, सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा था। थर्ड पर्सन में हमने क्या पढ़ा था, थर्ड पर्सन में हमने ये पढ़ा था कि वर्ब जो प्रोनाउन सिंगल है, एक है, ठीक है, प्रोनाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब में क्या हो गया था, प्लूरल फॉर्म। ठीक है, और जो प्रोनाउन आपका प्लूरल फॉर्म में है जैसे दे, इसके बाद मैं बनाऊंगी तो कमरा खोज लिया था मैं कर गई, आप थे मैं कर गई। वर्ब आपका होगा सिंगुलर फॉर्म में। यहाँ इसकी क्लास में इसमें क्लियर नहीं है। ओके, इसमें आगे इतना समझ में। अब देखो अगर हम नाउन और प्रोनाउन, नाउन और वर्ब के अलग तरीके से सोचेंगे, किस टाइम फ्री होगी जो कि नाउन और अगर हम वर्ब के तरीके से सोचेंगे, जहां नाउन, जहां हम एक नाउन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एक नाउन कौन सा हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ डॉली, ठीक है, डॉली वन है, जहां नाउन वन है वहां वर्ब आपका हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, डॉली के साथ में क्या आ जाएगा, प्लेस। ठीक है, इसके पास एस नहीं है तो इसे एस चाहिए। ठीक है, अब देखो जहां पे नाउन हमारा टू है, हम टू पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं अमित एंड अनु, चाहे नाउन हमारा वन से ज्यादा है, ठीक है, वहां पे हमारा वर्ब हो जाता है सिंगुलर, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एस है। ठीक है, तो इसे एस नहीं चाहिए, ये ध्यान रखो बेटा, जिसके पास एस नहीं है उसे एस चाहिए। ठीक है, जिसके पास ऑलरेडी एस है उसे एस नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपोजिट रिलेशन हो गया, अपोजिट रिलेशन हो गया ना। अपोजिट रिलेशन क्या हुआ बताओ, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो गया आपका, प्लूरल। ठीक है, और अगर नाउन आपका प्लूरल है वर्ब क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर। क्लियर हो गया, इतना आ गया सबको समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब एक चीज और समझो, देखो बेटा नेक्स्ट आ जाएंगे आपके इज एम आर, हम इज एम आर का समझते हैं। ठीक है, इज हम कहा यूज करते हैं, जब हमारे ही, शी, इट
यानी कि या हम कर सकते हैं जहाँ हमारे नाउन जो है वो वन है, सिंगुलर है, एक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं हम, एक वन सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे आपका वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल, यानी कि वर्ब में लग जाएगा एस और ईएस, ठीक है। तो आपका ही शी इट के साथ में एस और ईएस आ जाता है, या फिर हम ये लेते हैं, हम इसके साथ में इज आता है, ठीक है। इज MR में लेंगे तो इज आता है, ठीक है। आई के साथ में क्या आएगा आपका एन, क्योंकि आप स्पेशल हो, ठीक है। आर कहाँ पे हो जाएगा, जहां दे है, या आपका नाउन जो है वो मोर देन वन है, तो हम क्या यूज करेंगे, आर, ठीक है। इतना आया समझ में, वंस अगेन समझा रही हूँ। ही शी इट या नाउन वन है तो आपने क्या यूज करना है, इज। आई है तो आई के साथ में क्या आएगा, एम। दे और नाउन वन से ज्यादा है तो क्या आएगा, आर। जैसे फॉर एग्जाम्पल शानू, अनु, रोहित एंड रोहित। अब नाउन वन से ज्यादा हो गई, वन से ज्यादा जरूरी नहीं है कि टू, चाहे आपके 4 हो, आप क्या यूज करोगे, आर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वॉज वर, ले लो पहले वॉज वर, ठीक है। वॉज हम क्या आता है, इज और एम की जगह यूज करते हैं, ठीक है, और आर चेंज हो जाता है वन। बेटा ये है आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये है आपका पास्ट टेंस, क्लियर। वॉज वर क्या है, पास्ट टेंस, यानी कि आपका ही शी इट और आई, इसके साथ में क्या यूज करोगे, इन चारों के साथ में क्या यूज करोगे, वॉज, ठीक है। और वर हम कहाँ यूज करेंगे, जहां पे हमारा दे हो, ओके। नेक्स्ट करते हैं हम हैज हैव, ठीक है। हैज हैव में बेटा देखो, ये देखो, हैव का पहले समझो, प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन, दैट मीन्स आई वी, क्या आएगा, हैव। जब आई और वी के साथ में हैव आएगा तो यू के साथ में बेटा वो ही आता है। यू कहता है जब फर्स्ट पर्सन ने कुछ नहीं लिया तो मैं सेकंड पर्सन भी मैं वो ही लूंगा जो फर्स्ट पर्सन का है, ठीक है। तो जैसे आप अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे जाते हो और अगर कोई पेन देखते हो तो बोलते हो ना कि मुझे वो ही पेन चाहिए, है ना। अपने फ्रेंड से थोड़ा सा कंपटीशन करते हो ना, तो वही चीज देख लो कि यू के साथ भी आपका हैव आता है, ठीक है। और एक और चीज, ठीक है, तो हैज किसके साथ आ गया, हैज आया आपका ही शी और इट, ठीक है। हैव हमारा किसके साथ में आ गया, एक और दे, या नाउन वन से ज्यादा, ओके। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो देखो हैज हमारा किसके साथ आया, ही शी इट। हैव हमारा आई और वी के साथ में आया, यू के साथ में आया, दे के साथ में आ गया, ओके। इतना कंसेप्ट क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम। तो नाउन और जो वर्ब है ना बेटा, इनका एक्चुअली अपोजिट रिलेशन, ठीक है। क्या है, अपोजिट रिलेशन, कि अगर नाउन वन है तो वर्ब क्या हो जाएगा, वन से ज्यादा, ओके। नाउ एक चीज देखो, अगर अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, नाउन और वर्ब के रिलेशन में क्या पढ़ा कि अगर नाउन आपका सिंगुलर में है तो वर्ब आपका प्लूरल होता है,
ठीक है। अब एक चीज और देखो, अगर आपका 2 सिंगुलर नाउन दिए हैं, ठीक है, कितने दिए हैं बेटा? 2 सिंगुलर नाउन। 2 सिंगुलर नाउन कैसे दिए हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप और आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, अगर एक ही फ्रेंड ले रहे हो आप, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड एंड गाइड, ठीक है, कि मेरा दोस्त और गाइड दोनों, ठीक है, तो वहां पे आपका जो वर्ब है, ठीक है, वो किस फॉर्म में आएगा? वो भी आपका सिंगुलर के साथ फॉर्म आएगा। डेट मीन्स यहाँ पे आपका इज हो जाएगा। ओके, नाउ अगर मान लीजिए आपका अगर कोई सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन ज्वाइंट हुआ है एक सेकेंड नाउन के साथ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीता विद हर सिस्टर, तो सीता के साथ कौन जुड़ा? उसकी सिस्टर, ठीक है। जहां पे ये हो जाएगा ना बेटा, आपका जो वर्ब है वो भी आपका सिंगुलर हो जाता है। वर्ब भी क्या हो जाता है? सिंगुलर। दैट मीन्स जैसे वॉज आएगा या इज आएगा, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखो, हाँ, जहां पे आप चॉइस दे रहे हो, जैसे और, ठीक है, या कोई भी नहीं, ठीक है, वहां पे वर्ब भी आपका सिंगुलर फॉर्म में आएगा, ठीक है, क्लियर आ गया? कौन से फॉर्म में आएगा? सिंगुलर में, जहां पे आप चॉइस दे रहे हो। ओके, चलिए बताइए, इतना सबको क्लियर है? फर्स्ट एक एक्सरसाइज करो, फिर आगे क्लियर आएगा, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना, नाउन के अपोजिट में होता है वर्ब। जैसे हम एक मूवी देखते हैं, मूवी में आपको 2 चीजें याद रहती है, एक तो आपको हीरो याद रहता है, दूसरा आपको विलन याद रहता है। तो जो विलन है वो आपका वर्ब है और जो हीरो है वो आपका नाउन है, ठीक है। तो जैसे हम एक एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल